Everybody is supposed to put the heading in their classwork copies. How to prepare cash flow statement when cash book is not given. बच्चों जहां पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो पूछ जरूर लीजिएगा. आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी ये ट्रेडिंग पीएल बना हुआ है, बट मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा. सो यू आर सपोज टू पुट दिस हेडिंग, हाउ टू प्रिपेयर सीएफएस व्हेन कैश बुक इज नॉट गिवन, and below that write down columnar modified trading and PL account. People must be confused कि सर ये है क्या. आप एक बार बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. Not a very great rocket science to understand. Let me draw the format first, then people can prepare it. I hope so everybody remembers triple column cash book. Correct children? सबको याद है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. सो हमारा ये वाला ट्रेडिंग पीएल चिल्ड्रन विल कॉन्स्टिट्यूट ट्रिपल कॉलम्स. दैट इज 3 कॉलम कॉन्स्टिट्यूट करेगा. In one column, I'll be putting what is called as cash values of purchase, sale, expenses paid, incomes received. In one column, I'll be constituting the credit values बच्चों, और उसके बाद एक कॉलम में मैं टोटल वैल्यूज लिखूंगा. So everybody is supposed to draw the format. कहीं पे भी क्वेरी होगी प्लीज आस्क, डू नॉट हेजिटेट. पर्टिकुलर्स, कैश, क्रेडिट एंड टोटल. Same way here children. Particulars, cash, credit and total. Draw the format very quickly. So it's not a great rocket science. These things are being derived from that concept of class 11th, जहां पे हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा था और मैं बोलता था कि ट्रांजैक्शंस 3 तरह के होते हैं. एक हमारे, एक आपके और एक बाकी सबके. कैश ट्रांजैक्शंस आर देयर, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर देयर एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर देयर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, इन ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड व्हाट? Opening stock. Let us say the value is 10,000 and in the total also we'll be putting how much? 10,000. You may have a query, sir आपने कैश में वैल्यू क्यों नहीं लिखी? Logic is very simple children. Opening stock is that stock जो last year बच गया था. समझ में आ गया? तो ये आपके कैश एलिमेंट को जरा भी इफेक्ट नहीं करेगा. Opening stock doesn't represent any money is coming in or any money is going out. Then we have purchases. Concept को simple रखने के लिए मैं purchase return नहीं लिखूंगा. 60,000 का कैश परचेज हुआ है बच्चों और 30,000 रुपीज का क्रेडिट परचेज हुआ है. What is the total amount of purchases? Very good. Wages 10,000 paid in cash बच्चों and 3,000 is still unpaid. The total is what? 13,000. Is that much understood well by all? चलिए. Thereafter children we have sales. Let us say cash sale was 2,20,000, credit sale is 80,000. What would be the total amount of sales? 3 lakh. Then we have closing stock which amounts to rupees 15,000, not involving any element of cash. Debit side we have the final answer called as what children? Gross profit carried down. 3,15,000 is the credit total
Everybody is able to visualize this, children? And debit total from the total column is 90,000 plus 10,000 plus 13,000. कितना आएगा? 113. 3,15,000 में 1,13,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2,02,000 is your total gross profit. Correct? Correct? चलिए टोटल भी कर लेते हैं बच्चों. It will come how much? 3,15,000 315. अब आपने तो ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा, और अगर ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों कभी भी किसी कंट्री में बना होता तो शायद आज कैश फ्लो पढ़ना ही ना पड़ता हमको. जो काम हम चाह रहे हैं कैश फ्लो से वो यहीं से हो जाता. कैश वाले कॉलम की वैल्यूज देखते हैं चिल्ड्रन. व्हाट वाज कैश सेल ऑफ गुड्स? 220. एंड व्हाट वाज कैश परचेजेस? 60. and what was cash payment of wages? 10. So we can confidently say 220 cash आया होगा by selling goods. 60 cash must have flown out on account of purchase of goods and 10,000 on account of payment of wages. So what is 220 minus 70 बच्चों? 1,50,000 is the amount of cash GP. What? Cash GP. That gross profit which is there in the pocket of the businessman. तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, the word receipt and the word income, does it resemble a same meaning? No. 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस. 5 लाख रुपीस के गुड्स मैंने कैश में खरीदे, 7 लाख रुपीस में कैश में बेच दिया. टोटल पैसे मेरी जेब में कितने आए? फिर से सुनिएगा. 5 lakh worth of goods were bought for cash. 7 lakh worth of goods have been sold for cash. मेरी जेब में पैसे कितने आए? 7. पैसे तो 7 लाख आए, रिसिप्ट 7 लाख का हुआ, बट इनकम इज ओनली 2 लाख. खोपड़े में बात गई. 50,000 का मैंने बैंक से लोन ले लिया, मनी तो ये भी आ गया मेरे पास, बट इज इट माई इनकम? ये मेरी इनकम नहीं है. तो झटपट यहां तक कंप्लीट करिए. So the amount of gross profit that we happen to see in the question, children, or solution is rupees 2,02,000. But how much gross profit do we hold in cash? 150. अगर हमको किसी को पेमेंट करना होगा प्रॉफिट में से तो हम 150 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते. बट इफ आई से कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए हमारे जीपी पे, तो गवर्नमेंट टैक्स कितने पे लगाएगी? 2,02,000 पे. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पैसे नहीं है टैक्स कहां से दें? गवर्नमेंट बोल रही है अपने आप को बेच के दो, हमको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए. हमने नहीं बोला था क्रेडिट में सामान बेचो. देन चिल्ड्रन, व्हाट इज क्रेडिट साइड? 80 plus 15? 95 minus 10 is what? 85. 85 minus 30 is what? 55 minus 3 is what? 52,000 is the amount of credit GP. I repeat, children, 52,000 is the amount of credit GP. खोपड़े में बात गई सबके? पक्का? चलिए. सो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 2,20,000. Here it is. Oh, sorry, I made a mistake. ऊपर लिखना था, यहाँ लिख दिया गलती से. इधर भी लिख देते हैं बच्चों. Total is 2,20,000 and here it is 95,000. Thereafter, children, PL में हम क्या लिखा करते थे सबको पता होना चाहिए. By gross profit brought down. What is the amount of GP that is available in cash? Very good. What is the amount of GP which is not available in cash? 52. And what is the total amount of gross profit? 2,02,000. Now we have items like salaries. After that we have rent. After that we have, let us say, advertising.
After that we have, let us say, insurance premium. सबको नजर आ रहा है? सैलरी चिल्ड्रन हमने 7,000 रुपी पे कर दिया and 1,000 rupee is yet to be paid. What is the total amount of expense for salary? How much? 8,000. Very good. Rent children, 9,000 paid in full. There is no outstanding amount. Thereafter advertiser से contract किया हुआ है, 4,000 रुपीज होता है भाई तुम्हारा. Let our product get sold, हम तुम्हें पैसा दे देंगे. पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग ही है. इंश्योरेंस कंपनी को 12,000 रुपी पूरा कैश पे कर दिया हमने. डन चलन. अकाउंटिंग रेशियो थोड़ा सा याद होगा, नहीं याद तो क्लास 11th का तो याद होगा ही सबको. फाइनल अकाउंट्स बाय जीपी ब्रॉट डाउन आपने क्रेडिट साइड में लिखा है. जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस करते थे, व्हाट वी यूज टू गेट द आंसर एज? वेरी गुड, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट बच्चों एक चीज और लिख लीजिए आप, डेप्रीसिएशन. दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर. व्हेन वी चार्ज डेप्रीसिएशन चिल्ड्रन, डू वी पे एनी मनी टू समबडी? नो. सो हम इसे क्रेडिट की कैटेगरी में प्लॉट कर देते हैं एंड दैट इज 6,000. तो टोटल विल आल्सो बी हाउ मच? 6,000. रेडी टू आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन? सब लोग तैयार हैं? कैश जीपी वाज हाउ मच? 150. सैलरी पेड इन कैश वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 7. 150 minus 7 is 143. 143 minus 9 is what? 132 minus 12 is what? 1,20,000. What's a coincidence? आप 12th क्लास में पढ़ भी रहे हो, आंसर भी 120 आ रहा है. गुड. 52,000 was credit GP. Out of that, 1,000 salary is yet to be paid. What is 52 minus 1? 51. 51 minus 4 is what children? 47. 47 minus 6 is what? 41,000. चलिए क्या 122 होगा सर कैश का ऑपरेटिंग प्रॉफिट. चलिए 122 दो बार 12th क्लास में पढ़ लीजिएगा. टू अगर आगे आ गया तो फिर से एक बार जोड़ लें. 150 में 7 गया 143. 143 माइनस 9 इज 134 होगा मैथ्स के हिसाब से ना कैलकुलेशन. 1.5 लाख में से 7,000 गया तो 153 बचा. 153 में 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 134 माइनस 12 इज 122. चलिए 2,02,000 माइनस 8,000 इज व्हाट? 2,02,000 minus 8,000 is what? 194. 194 minus 9? 185 minus 4? 181 minus 6? 175 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ किया आप लोग ने. हाँ 12,000 भी तो माइनस होगा, वो यहाँ पे लिखा नहीं हमने. यस 12 भी माइनस कर दीजिए. What will it be coming to? 163. Because ये टोटल सेम आना चाहिए ना कैश और क्रेडिट का. सो कितने पैसे आपने बिजनेस एक्टिविटीज से कमाए? 163. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस करके हमने कितना कमाया. तो मैं टीचिंग प्रोफेशन से जो अर्न करता हूं दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इसके अलावा बैंक गिव्स मी इंटरेस्ट. Companies where I have invested money into shares, they give me dividend. My tenant gives me rent. क्या वो मेरी टीचिंग कैपेबिलिटीज की वजह से है? Absolutely not. तो वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है. तो ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस जिस चीज का है आपका
उससे आप कितना कमाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पापा का डिस्ट्रीब्यूशन है लेट अस से इंडियन ऑयल का, या मान लीजिए कैडबरी का, या वो एक कॉलोनाइजर या बिल्डर है, तो इन एक्टिविटीज से जो कमाएंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बुला लिया गया बीटेक के स्टूडेंट्स को, योर फादर इज अ कॉलोनाइजर बिल्डर हैविंग 20-30 ईयर एक्सपीरियंस, तो बीटेक आईआईटी खड़गपुर आईआईटी रुड़की बुला लिया गया उनको कि भाई आके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लेक्चर्स दीजिए, और उनको 21,000 रुपीज का एक गिफ्ट दे दिया गया। वो आपके पापा की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो 163 आपने बिजनेस करके कमाया, जिसमें से आपकी जेब में कैश अर्निंग्स कितनी है? 122। इज दैट क्लियर? और 41 इज दैट अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस जो कैश में अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों अगर आपको याद हो, आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो यही 122 है। तो अगर आप इस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो आपको शायद कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती ही ना। बट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हमें कौन सा प्रॉफिट मिलता है? जो कैश और क्रेडिट एक्टिविटीज को मिला के आता हो। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमको फिल्टरिंग करनी पड़ती है। हमको टोटल 163 के एलिमेंट में 41 का एलिमेंट आउट करना पड़ेगा, ताकि हमें आंसर क्या मिल जाए? 122। तो अगर ट्रेडिंग पीएल ऐसा कॉलमनर बनता तो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आपको जरा भी परेशानी ना उठानी पड़ती, एंड यू वुड बी सेइंग सर 122 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? तो यही अप्रोच बस आपको एज अ टीचर मेरे को सिखानी है, कैसे आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, ताकि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता लग जाए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, सो देयर आफ्टर अब यहां पे भी बच्चों टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा? लेट्स सी, जरा ऐड करिए। 7 + 9 इज व्हाट? 16 + 12 इज व्हाट? 28 + 122 is what? 1,50,000. Good. Then children, 1 + 4 is 5. 5 + 6, 11 + 41, 52. And this would be, if I'm not wrong, 2,02,000. Done all? Children, done all? Yes, sir. सबने लिख लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Those who are sleeping उन्होंने भी लिख लिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे बच्चों लिख दीजिए कैरेट डाउन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे लिख दीजिए कैरेट डाउन। And then we'll be putting by operating profit brought down. Any problems to anybody till this point? Please ask children. थोड़ा सा सजा दें अपने ट्रेडिंग पीएल को। This is the total. ऊपर नीचे सिंगल लाइन चिल्ड्रन। Again this is the total. चलिए, update fast children. Moving ahead, next children, we have certain set of incomes now. और वो कौन कौन सी इनकम्स हैं? क्रेडिट साइड में लिखना स्टार्ट करिए। बाय रेंट रिसीव्ड, बाय dividend received, by interest received, by discount received. रेंट रिसीव्ड कैश में लिख लीजिए 6,000,
Dividend received also in cash 12,000. Interest received also in cash 4,000. But discount received, put this value in the credit column because ये आपको cash में नहीं मिलेगा. So it is 6 in total here. Then we have 12. Then we have 4. And then we have 1. Complete this quickly. Very quickly. Proceeding further on the debit side, let's put the items. क्या क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा. 2. Interest on debentures 14,000. क्रेडिट में कुछ भी मत लिखिएगा. 2 preliminary expenses written off. ये क्रेडिट आइटम होगा. चलना, make this value as 3,000. लिख दिया? लिख दिया सबने? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? So credit side is children 163 plus 6 plus 12 plus 4 plus 1. क्या है टोटल? 163 plus 6 is 169. 169 plus 12 is 181. 181 plus 4 is 185 plus 1. It is 186. Minus 17,000. क्या आएगा आंसर? 1,69,000. This is called as net profit before tax. क्या बोलेंगे इसको बच्चों? Net profit before tax. Everybody is supposed to put this. लिख दिया? लिख दिया सबने? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ब्रॉट डाउन. यहाँ पे कुछ बच्चे बिफोर की जगह आफ्टर लिख देंगे गलती से, क्योंकि पहले लिखा था बिफोर तो बाद में लिख देंगे सर आफ्टर. वो कैरेट डाउन था बिफोर टैक्स, दिस इज ब्रॉट डाउन. है दोनों ही बिफोर टैक्स. व्हाट वाज द वैल्यू कमिंग चिल्ड्रन? 1,69,000. Thereafter we'll be paying tax. कोई भी मनगढ़ंत वैल्यू लिख लेते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. 2 प्रोविजन फॉर टैक्स. टोटल में ही लिखूंगा, नॉट क्लासिफाइंग इट एज कैश और क्रेडिट, बिकॉज चिल्ड्रन इन रियलिटी, आई रिपीट, इन रियलिटी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 31 मार्च को आपके अकाउंटेंट ने ट्रेडिंग पीएल बना लिया. 101% इट इज गारंटीड वो ट्रू अमाउंट ऑफ टैक्स अभी डिटरमिन कर ही नहीं सकता. वो अगर 100 रुपए 101% डिटरमिन कर भी ले, गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मानेगी. आपकी बुक्स ऑडिट होंगी. ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट दे विल टेल, उसे ट्रू टैक्स माना जाएगा. वो आपके असेस्ड अमाउंट से 100 रुपए कम भी हो सकता है और 100 रुपए ज्यादा भी हो सकता है. तो इफ आई से कि भाई मेरी इनकम XYZ है जिसपे टैक्स बना 80,592 रुपीज, मैंने तो इतना असेस किया थ्रू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव पेड इट टू द गवर्नमेंट. बट ये तब तक टैक्स पेड नहीं माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट हमें इसका एक्नॉलेजमेंट ना दे दे. इज दैट क्लियर? तो बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई भी हो, ऑलवेज व्हेन वी असेस टैक्स, व्हेन वी पे टैक्स, वी डू नॉट यूज द वर्ड टैक्स पेड. हम बोलते हैं दिस इज proposed, this is a provision, this is estimated payment. खोपड़े में बात गई. तो कभी भी पीएल के अंदर आपको टू पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नजर नहीं आएगा. हमेशा क्या नजर आएगा? टू प्रोविजन फॉर टैक्स. आप पे करिए उतना, ज्यादा पे करिए, कम पे करिए, आप कुछ भी बोलिए, टेक्स्ट फॉर अकाउंटिंग इज प्रोविजन फॉर टैक्स.
समझ में आ गया? जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हमारे घर में पेंटिंग हो रही है, कौन आया है, एमएफ हुसैन आए या लियोनार्डो डी विंची आए हैं? अरे पेंटिंग मतलब वो पेंटिंग नहीं हो रही है, व्हाइट वॉशिंग हो रही है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब व्हाइट कलर से पूरे घर को वॉश किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो हिंदी में रंगाई पुताई। अंडरस्टूड? चलिए, सो बच्चों मान लीजिए टैक्स का अमाउंट आ गया, लेट अस से 29,000। कितना? उसके बाद आपका बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैरेड डाउन। व्हाट इज 129 माइनस, सॉरी 169 माइनस 29 चिल्ड्रन? 140। समझ गए? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? टोटल के लिए मनगढ़ंत कंटेंट दिखा दीजिए यहाँ पे। Here we end up what is called as your PL children. I repeat, we end up what is called as PL. अब जो स्टार्ट होगा that will be your profit and loss appropriation account. सुनाई पड़ी बात? आपको याद होगा कंपनीज के पीएल अप्रोप्रिएशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या लिखा करते थे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट। सिर्फ इस दिन के लिए मैंने आपको फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। लेट अस से इट इज 71,000, then we'll be putting by net profit after tax brought down. How much was it coming? 1,40,000. Debit side we'll be putting to dividend paid, let us say 14,000, to reserve, $26,000. To balance carried down. 140 plus 71 is what, children? 140 plus 71 is what? 211. Minus 14,000 minus 26,000. क्या आएगा आंसर आपका? 171. Anybody having any queries? Please ask. इसके बाद एक जोक पूछने जा रहा हूं आपसे, बहुत बढ़िया रिडल है, जोक नहीं है रिडल है बेसिकली। क्विकली डू दिस चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन लास्ट लेक्चर कुछ हमने होमवर्क भी दिया था आपको और कुछ मैंने पढ़ाया भी था आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट? कैश बुक। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएस का कभी भी नहीं चाहता था दैट अ लेमन इन्वेस्टर शुड प्रॉपरली इन फुल लेंथ एंड ब्रेथ बी एबल टू अंडरस्टैंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो शुरू से इसको जान पूछ के कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। नहीं समझे बात को? हमेशा हमने फर्नीचर बनाने वाले कारपेंटर को लो ग्रेडेड वर्कर बोला और गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाले को हाई ग्रेडेड। इसलिए गोल्ड के मेकिंग चार्जेस दुनिया में हमेशा से ज्यादा हो गए और कारपेंटर के कम। वेयर भाई स्किल तो दोनों की बराबर है, स्किल दोनों की बराबर है, बट हमने डिग्रेडेशन और स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर दिया। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो कैश बुक अगर दी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा सबको पता है। बट व्हेन कैश बुक इज नॉट गिवन और आपको दे दिया जाए ट्रेडिंग पीएल बच्चों और आपसे कहा जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं? बिकॉज जो डेटा आपके सामने है चिल्ड्रन, दैट इज द डेटा विच कॉन्स्टिट्यूट्स सो कॉल्ड टोटल वैल्यूज। आपको अलग से कैश और क्रेडिट का बाइफर्केशन यहां दिया ही नहीं गया। क्या आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला कैश फाइंड आउट कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। अगर मैं आपको डेटा दे दूं जिसमें टोटल एक्टिविटीज के साथ साथ क्रेडिट वाले आइटम्स आपके पास हो चल रहे हैं, तब आप कैश डेटा
पता लगा पाएंगे या तब भी नहीं पता लगा पाएंगे? तब पता लग जाएगा। टोटल में से किसको फिल्टर आउट कर दें? क्रेडिट वालों को। तो बचेगा कौन सा? कैश वाला। कुछ ऐसी ही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। तो आई रिपीट वंस अगेन चिल्ड्रन, इफ अ कैश बुक इज गिवन टू अस, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ डैम इजी एक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर मैं आपको कहूं कि वी डू नॉट हैव अ कैश बुक, रादर वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में भी आपके पास टोटल कितने आइटम्स का अमाउंट है वो दिया है, क्रेडिट आइटम्स आर गिवन, तो टोटल में से क्रेडिट वालों को उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। इट्स इजी और नॉट? इट्स इजी और नॉट? पक्का? चलिए, सो क्या करना चाहते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग आ जाएं अपने इस फॉर्मेट में और एक डिफरेंट कलर का पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले लें। सबके पास ब्लू कलर है अगल बगल, अगर तो बगल वाले से एक्सचेंज कर लें, इनके फ्लो के कलर से डिफरेंट कलर या शेड आ जाएगा। गॉट इट? रेडी एवरीबॉडी? चलिए, न्यूज़पेपर में वो एक गेम खेला होगा, आपको ऐसे ऐसे पहुंचाना होता है और फिर घर तक चला जाता है इंसान। खेला है ना? बस वही काम करना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको विजिबल होगा what is called as to balance carried down and by balance brought down. Please tell me children, what is the difference in these two items? 1 lakh. 1 lakh. Excellent answer. क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों? फिर से बताइए, मैं भूल गया। How much? 1 lakh. Excellent answer. Excellent answer. 100 रुपीज आपके पास मॉर्निंग में थे, 30 रुपीज आपने खर्च कर दिए, कितने बचे? 70. अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, 70 यू आर लेफ्ट एट द इवनिंग, 30 खर्च करने के बाद हाउ मच यू पोजेस्ड? समझ में आ गया क्या करना है? चलिए, जब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख चुके थे, फिर आपने डेबिट साइड में डिविडेंड एंड रिजर्व लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद नेट प्रॉफिट, फिर डेबिट साइड में डिविडेंड एंड रिजर्व। आपका आंसर क्या आया था? कैरिड डाउन। तो आपने 71 प्लस 140 ऐड किया, कितना आंसर आया था बच्चों? 211. फ्रॉम 211 वी सब्ट्रैक्टेड 14 एंड 26 एंड केम डाउन टू 171. तो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हम लेस कर रहे थे ऑपोजिट साइड वाले आइटम्स को, सेम साइड वाले आइटम्स को हमने क्या किया था? ऐड किया था। तो अर्लियर वी एडेड 71 and 140 and deducted 14 and 26 and landed upon at 171. अब उल्टा चलना है, तो जो ऐड हो चुका है उसे सब्ट्रैक्ट करना है और जो सब्ट्रैक्ट हो चुका है उसे ऐड करना है, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। जर्नी समझ में आ गई कहां से कहां तक जाएगी? सो 171 और 71 का डिफरेंस क्या गया चिल्ड्रन? 1 लाख। Earlier this 14 and 26 was added or subtracted? Subtracted. अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। 14 and 26 कितना हो गया बच्चों टोटल? 1,40,000. क्या आपको 140 जैसा कुछ नजर आ रहा है? What children? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें अभी और ऊपर जाना है, तो ऊपर से नीचे जब आ रहे थे, some items were added and some items were subtracted. अब रिवर्स मूव करना है, so those items which were added earlier will now be subtracted and those which were subtracted earlier will now be added. What we did with provision for tax children, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट में 169 में क्या किया था? 29 को माइनस किया था। अब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कहां तक पहुंच जाएंगे? 169 तक। सबको नजर आ रहा है? जब हमने 169 कैलकुलेट किया था एज नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कैसे कैलकुलेट किया था? विद दिस वैल्यू ये सारी की सारी चीजें क्या की गई थी? ऐड। और इन दोनों को क्या किया था चिल्ड्रन? सब्ट्रैक्ट। अप्लाई रिवर्स। 6, 12, 4 and 1 were earlier added will now be subtracted. टोटल करो जरा इसको। 23
was added earlier will now be subtracted. 14 and 3, 17 was subtracted earlier, will now be added. So net देख लेते हैं भाई, 23 माइनस और 17 प्लस, तो -6 हो रहा है. कितना आएगा बच्चों? 163. Half of the battle is won. 163 तक सब समझ गए? कितना कॉम्पोजिशन अपडेट करें फास्ट अपनी कॉपी में. राइट साइड पे जो मैंने कैलकुलेशन लिखा है प्लीज उसको भी लिख लें वेरी क्विकली. चलो अब थोड़ी देर में मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा. सर इतनी नौटंकी करने से अच्छा है यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप एंड लैंडेड ऑन द प्लैनेट अर्थ. ये तो कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, बट आगे वो जाएगा जो अर्थ से मून पे जाएगा. ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर से नीचे आना तो बड़ा आसान है, बट नीचे से ऊपर जो गया उसी का रॉकेट बढ़िया माना जाएगा. तो हमेशा आप अपने घर के अंदर एंट्री कहां से लेते हैं? मेन डोर से. ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें तो किक ही नहीं है. किक क्या है? पार्टी से लेट आए, पड़ोस वाले अंकल से जान पहचान अच्छी रखनी है, उनके घर एंट्री मारनी है मेन डोर से, फिर उनकी छत पे जाना है, फिर अपने घर की छत पे आना है, वेल्डिंग मशीन कटर से छत की ग्रिल काटनी है और घर के अंदर घुसना है और कंबल ओढ़ के सो जाना है अपने रूम में जाके. सवेरे जब पापा मम्मी उठेंगे तो कहेंगे मैजिक, बिना गेट खोले कैसे एंट्री हुई. समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर डबल मैजिक with the distraction that you caused to your ancestral and parental property. खोपड़े में बात गई बच्चों. तो सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अरे मैंने बताया ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सीधी सादी चीजें समझ में नहीं आती. अभी आलू पराठा रोल बोल के बेचोगे ना तो 15 का बिकेगा, काठी रोल हो गया तो 75 रुपए रेट हो गया. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार पीवीआर सिनेमास गया, शायद पहली दूसरी बार, तो वहां नाचोस करके कुछ बिक रहा था 240 रुपए का. तो मेरे को लगा हाई फाई चीज होगी, मैंने खा ली. 1-2 महीने बाद बाजार में देखा 20 रुपए का पैकेट मिल रहा था. मेरा तो खून सूख गया, पूरा जल गया. ऐसा श्राप दिया कोविड में, पूरा बिजनेस ही पीवीआर का चौपट हो गया. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? वो पिज्जा होता है ना 250 रुपए का, सिंपल है, घर में रोटी होती है, थोड़ी बासी कर लो उसको, स्टिफ हो जाती कड़ी कड़ी एकदम, या पराठा, और उसके ऊपर सब्जी और दाल लगा लो और खा लो. पिज्जा ही होता है एक तरह से वो. समझ में आ गया? गुजिया बोले तो सस्ती बिके, मोमोज बोले तो रेट बढ़ गया. तो कुछ लोग फटीचर जीन्स खरीदते हैं 5000 रुपए की, कुछ 899 रुपए वाली खरीदते हैं, उसको बीच में काट पीट लेते हैं, या चूहे के घर में उसको छोड़ देते हैं, कल सवेरे उसकी भी प्राइस 5000 हो जाएगी कट पीट के. तो ब्रांडिंग हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा. सो 2001 से पहले जब कैश फ्लो हम पढ़ाते थे तो हम 2 मेथड्स पढ़ाते थे, एक फॉरवर्ड मेथड, एक बैकवर्ड मेथड. तो फॉरवर्ड मेथड में ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते थे और कहां तक आते थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक. और बैकवर्ड मेथड में यहां तक जाते थे, पूरा घूम टहल के. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? सो 163 जो आपको प्रॉफिट मिला चिल्ड्रन, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट विच स्टेटमेंट आर वी प्रिपेयरिंग? Cash flow. This 163 is calculated on what is called as accrual basis, which means it constitutes credit transactions as well as cash. But we are focused only to understand what children? Cash. But 163 के अंदर दोनों है. किसको किक आउट करें? रोनाल्डो की तरह, क्रेडिट वालों को. तो क्या बच जाएगा? कैश. तो सर कैसे करना है? ये 1000 नजर आ रहा है बच्चों, ये 4 नजर आ रहा है, ये 6 नजर आ रहा है, और ये आपको 12 तो कैश में था, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज 6 + 4 + 1? 11,000 रुपीज. अगर आप 163 में से 11 को किसी तरह से एडजस्ट कर दें, क्या तब भी आप 122 तक पहुंच पाएंगे? सर नहीं पहुंच पाएंगे. चलिए पहुंचाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले ये काम कंप्लीट करिए आप. चलिए, all these items children 1000, 4000, 6000 appear on which side of trading account? Debit side.
वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने 2,02,000 में से इन सबको भी माइनस किया था इनके साथ, बट क्योंकि ये तो कैश के हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे मतलब के हैं। कौन से फालतू में यहां जुड़े हैं जो बियॉन्ड आर नीड एंड रिक्वायरमेंट हैं, क्रेडिट वाले। सो अर्लियर while calculating 163 we subtracted them, yes or no? अब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसको 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 ऐड करना पड़ेगा, इसको, इसको एज वेल एज इसको। व्हाट इज 6 + 4 + 1 चिल्ड्रन? 11। तो जरा 1,63,000 में इस 11,000 रुपी को ऐड कर लीजिए आप, कितना आएगा? 174। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का, कंफर्म? और ऊपर चले अब। क्लोजिंग स्टॉक 15 का था चिल्ड्रन। वाइल कैलकुलेटिंग जीपी आपने क्या किया था, सेल्स में इसको प्लस किया था। अब वापस ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। सो माइनस 15,000 इन द नेम ऑफ व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा बच्चों आंसर? 159। Earlier this credit sale was also added, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल was GP, तो क्रेडिट सेल पहले ऐड हो चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट क्रेडिट सेल। हाउ मच? 80,000। क्या आएगा बच्चों? 79,000। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, अर्लियर व्हाइल कैलकुलेटिंग जीपी व्हाट प्रैक्टिसेस वर अडैप्टेड चिल्ड्रन? आपने क्रेडिट टोटल में से इन सबको माइनस किया था, इन सबको माइनस किया था। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट्स सी हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। ऐड कितना कितना करेंगे, 10, 30 एंड 3, कितना हो गया बच्चों? 43,000। सो प्लीज ऐड 43,000 in the name of opening stock, in the name of credit purchases, in the name of wages outstanding। क्या आएगा बच्चों आंसर? 0 0 0 बन गया हीरो। 9 and 3 12, 7 + 1 8 and 4 12। आ गया आंसर 122 आ गया बच्चों। बहुत घुमाए सर, बहुत घुमाए, बहुत घुमाए। समझ में आ गया? पक्का, कंफर्म? अपडेट वेरी क्विकली। ये जो कॉम्पोजिशन मैंने लिखा है इसको झटपट लोग लिख लें चिल्ड्रन, और मैं इसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर सजा सजा के लिख देता हूं। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन? नथिंग। कितना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 163। वेरी गुड। और देयर आफ्टर आपने प्लस क्या किया चिल्ड्रन? 15,000 आंसर। ओ सॉरी 11,000, सॉरी 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 सॉरी। पहले प्लस वाले एक साथ बता दीजिए मेरे को आप। उसके बाद आपने 43 प्लस किया था ना, 43 में क्या क्या था बताएंगे जरा। व्हाट वाज 11 चिल्ड्रन? 11 क्या था जरा बता दीजिए। हाँ, सो आई कैन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सबका क्रेडिट वाला पार्ट था ना, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। और देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्या था प्लस में? 43। तो 43 में क्या था जरा अलग अलग बता दो मेरे को। Opening stock. ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 10,000। Outstanding. Yes. देन वी हैड व्हाट चिल्ड्रन? हाउ मच? 30,000। ठीक है, देन वेजेस कितना? 3,000। अभी लिखते जाइए, अभी सबका ट्रांसलेशन भी सिखाना है आपको। व्हाट वाज दिस 10,000 चिल्ड्रन? ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। एंड व्हाट वाज दिस 30,000? क्रेडिट परचेज, तमीज से बोलिए प्लीज। एंड व्हाट वाज दिस 3,000? मैनर्स खो गए लोगों के भाई। आउटस्टैंडिंग वेजेस। और माइनस में क्या था बच्चों सबसे पहले? क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच? 15,000।
और क्या था बच्चों, ये 80,000 कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट, क्रेडिट सेल। हाउ मच, 80,000। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो ये जो आपका 163 था, दिस इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। और अब जो बच्चों आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस। हाउ मच इज इट कमिंग चिल्ड्रन, 120। झटपट अपडेट। एक चीज और बता दूं आपको तो आपको और अच्छा लगेगा। हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस 163 चिल्ड्रन? हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस 163? क्या था बच्चों 163? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन विच बेसिस? वेरी गुड। कैसे आया था 163, सबको याद है आंसर? नेट प्रॉफिट का डिफरेंस आपने कितना लिया था? हाउ मच? 1 लाख। वेरी गुड। इस 1 लाख रुपीज में चिल्ड्रन क्या ऐड किया था सबसे पहले आपने? एक एक करके बताइए। रिजर्व, डिविडेंड पेड and tax. What was the amount of reserve children? 26. Dividend was 14 and tax कितना था? 29. तीनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा? ना ना, इन तीनों को ऐड करके बस बताइए। 69. So net profit before tax was how much? 169. इसके बाद 169 से और ऊपर जब आप गए थे तो आपने कुछ चीजों को प्लस किया था और कुछ चीजों को माइनस किया था। प्लस आपने किसको किसको किया था याद करिए? इंटरेस्ट एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेप्रीसिएशन भी था शायद उसमें। आंसर नहीं था डेप्रीसिएशन? आंसर अच्छा, डेप्रीसिएशन तो ऊपर आया था, सॉरी। हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट है उसका भी, क्योंकि चलिए नो प्रॉब्लम। कितना था बच्चों में बताइए? हाउ मच? 17,000। ओके। और माइनस की थी क्रेडिट साइड की वो 4 आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। व्हाट वाज दैट? टोटल वैल्यू बताओ बस। हाउ मच? 23. 169 plus 17 minus 23 is what children? 163. सबको समझ में आ गया? हाउ डिड वी गेट दिस 163 चिल्ड्रन? पक्का समझ में आ गया 163 कैसे आया था? चलिए झटपट इसको लिख लें। चलिए, सो सबको ये स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? तो मैंने वर्कबुक में भी ये बना के दिया हुआ है ट्रेडिंग पीएल, बट इसमें आई हैव टेकन डिटेल अमाउंट, इसमें कैश आइटम्स को अलग अलग सेग्रीगेट वैसे नहीं किया जैसे अभी ड्रॉ किया था हमने। इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप सीधे आ जाइए बच्चों। आपको ये फॉर्मेट नजर आ रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वर्कबुक के पेज नंबर 10 के बाद 11 पे। मिल गया चिल्ड्रन? मिल गया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा दैट द मेथड इज इनडायरेक्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व। मिला सबको? मिला सबको? यही काम हमने किया था अभी। टैक्स को ऐड बैक किया था, डिविडेंड को ऐड बैक किया था, रिजर्व को। इज दैट अंडरस्टूड? क्यों? तो यहां पे बच्चों लिखिए डॉक्टर टी, डॉक्टर टी, D for dividend, R for reserve and T for tax. Thereafter आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड नॉन कैश आइटम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एड बैक करना है। इज दैट क्लियर? क्या करना है? एड बैक करना है। तो इसके लिए लिख लीजिए DLW। वाराणसी में देयर इज अ डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है जहां पे इंडियन रेलवेज के इंजन्स बनाए जाते हैं।
तो डॉक्टर टी आपको डीएलडब्ल्यू वाराणसी में मिलेंगे। इज दैट क्लियर? Years ago I went to a school in Varanasi for taking practical exam. तो वहां के बच्चों ने ठीक से कैश फ्लो के जवाब मेरे को दिए नहीं, और उनके टीचर अपनी तारीफ किए जाते, सर हमने इतना बढ़िया पढ़ा, इतना बढ़िया ट्रिक सिखा दी, डीएलडब्ल्यू याद कर लो। मैंने कहा अकाउंटेंसी है भाई, इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा याद कर लो, बताना पड़ेगा ना क्यों डीएलडब्ल्यू याद कर लो। मैंने उनकी वो अप्रोच कॉपी कर ली, बट अपनी वाली मैंने उनको नहीं बताई, बाद में बता दी थी मतलब। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम के केस में क्या क्या आया था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिला सबको। तो जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे और थोड़ी सी आपकी बॉडी में कमजोरी होगी, दैट इज आपको प्रॉब्लम आएगी कि भाई ब्लड तो चढ़ रहा है बट वीकनेस ज्यादा है, तो ड्रिप लगती है ना, तो यहां लिख दीजिए DRIP ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इतना झटपट अपडेट करें। चलिए, तो DLW is depreciation, loss on sale of asset and items like preliminary expense, underwriting commission, share issue expense, written off, आगे सब लिखा हुआ है। DRIP, dividend received, rent received, interest received and profit on sale of assets. Is that clear? अब जो आपका आंसर आएगा चिल्ड्रन, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो टेक्स्ट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका मतलब है दैट इट इज बेस्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। व्हाट? अक्रूअल बेसिस। और हमें इसको कन्वर्ट किस पे करना है? कैश बेसिस पे। कैसे कन्वर्ट करना है? 4 आइटम्स को एडजस्ट करके। कौन कौन से 4 आइटम्स? करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस कर देना और घटेगा तो प्लस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो प्लस कर देना और डिक्रीज करेगा तो माइनस। व्हाई इज इट सो? ये अगले लेक्चर की कहानी है चिल्ड्रन, बट आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? वापस आ जाइए, ये जो आपने डेरिवेशन लिखा है चिल्ड्रन, people are able to see this outstanding expense, opening stock, credit purchase, outstanding wages, closing stock and credit sale. तो एक्चुअली क्रेडिट सेल के बच्चे का नाम क्या है? डेटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर करंट लायबिलिटी। क्रेडिट परचेज इज द नेम ऑफ द फादर whose son is named as creditor. Outstanding wages is also a current liability. और अगर आप स्टॉक की बात करेंगे चिल्ड्रन, तो स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ करंट असेट। तो कहने का मतलब बोल रहे हैं नौकरानी को, सुना रहे हैं बहू को। समझ में आ गया? तो लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस बट है वो करंट लायबिलिटी, लिख रहे हैं क्रेडिट सेल बट है वो दलिद्दर डेटर। नहीं समझ में आया? जैसे आप किसी से कहें, अरे यार आज तो सर ने एकदम दिमाग ही खाली कर दिया, इतना पढ़ा दिए, अपना ही बड़बड़ाते रहे एकदम, और हमारी पूरी खोपड़ी पिघल गई, बहुत खड़ूस टाइप के हैं। तो लोग समझ जाएंगे सौरभ सर हैं क्या। समझ में आया? सिनोनिमिकल अप्रोच बेसिकली। खोपड़े में बात गई। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आपके इंग्लिश के टीचर बोले कोई बहुत बढ़िया प्ले कराएंगे इस बार एनुअल फंक्शन में, तो आपके दिमाग में पहला नाम शेक्सपियर ही आएगा। समझ में आया? तो वही चीज यहां पे भी है। तो कहने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बट इट इज करंट लायबिलिटी, कहने को क्रेडिट परचेज है बट इट इज क्रेडिटर्स बेसिकली। तो वर्डिंग्स आर डिफरेंट। सर इतना क्यों टेक्निकल और टिपिकल बनाया गया? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया, जानबूझ के ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है कि लोगों को जल्दी कंपनी की हरकतों के बारे में समझ में ना आए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जानबूझ के बनाए गए ताकि प्रोग्रामिंग का वैल्यूएशन बढ़ जाए। समझ में आई बात? चलिए, सो यहां पे आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश बेसिस वाला। टैक्स माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये चीजें आपको मिलेंगी ट्रेडिंग पीएल से, बट मजे की बात ये है कि क्वेश्चन ट्रेडिंग पीएल देगा ही नहीं आपको। क्वेश्चन क्या देगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम से ट्रेडिंग पीएल का डेटा डिस्कवर होगा, वो डेटा उल्टा करके यहां लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने स्कूल में क्लास 12 के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटोग्राफ सबमिट करना है, और फोटोग्राफर दुनिया का कोई भी आपके चेहरे की तस्वीर खींचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टीचर ने कहा ठीक है पापा मम्मी की फोटो ले आना,
जेनेटिकल प्रोग्रामिंग से आपकी फोटो डेवलप कर ली जाएगी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ ऐसा काम करना होता है कैश फ्लो में। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।